Good morning to all the students of Dr. B.R. Ambedkar Government College, Bhilwara. Students, in series of studying the poems prescribed in our course BA third year, today we are going to take a new topic, new poem, My Last Duchess, written by Robert Browning. This poem was written by Browning in 1842 and he was a Victorian poet, and this poem is a dramatic monologue. Here this dramatic monologue composed of two words, dramatic and monologue. Monologue means when only a single person speaks in a poem, and this person is not the poet himself but a imagined character, and means there is only one speaker in such poems. That is why these poems are called monologue. There is another listener, but he is only silent one. And in such poems which are called dramatic monologue, these are called dramatic because this contains the theatrical effect. The effect which we watch, which we find out in theatre, can be found in these poems. So here an imagined character who is not the poet speaks to a silent listener, expressing the inner conflict going on in his soul and heart. So through these dramatic monologues, a speaker presents his own character before not only his listener but to audience also. This poem is known for its history, psychology, and the apt to express your views, irony, and also the love for collecting art. So I begin this poem explaining without reciting one because this is long poem and it will take too much time. So I start from explaining. My Last Duchess by Robert Browning. He is a Victorian poet. That's my last duchess painted on the wall. When a person who is a messenger comes to Duke, actually this poem is expressed by the Duke, imagined Duke. जैसे अपने यहाँ हम राजकुमार वगैरह पदवी देते हैं, उसी तरह एक ड्यूक पदवी होती है. तो एक बड़े शहर का एक ड्यूक है, तो उसकी पहले वाइफ की डेथ हो चुकी होती है. ही इज़ विडोवर नाउ, अभी वो विदुर है, और उसकी दूसरी शादी के लिए एक व्यक्ति अपने मालिक की बेटी का शादी का प्रस्ताव लेकर उसके पास आता है. और जब वो मैसेंजर जो संदेशवाहक शादी का प्रस्ताव लेकर ड्यूक के पास आता है, तो उन दोनों के बीच क्या वार्तालाप होता है, व्हाट कन्वर्सेशन टुक प्लेस बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड इन दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग. सो व्हेन द मैसेंजर गोज टू द पैलेस ऑफ ड्यूक, पैलेस, द ड्यूक वेलकम हिम in his palace, and what he says when he sees messenger, that's my last duchess. He tells the messenger that there is a painting hung on the wall. दीवार पर एक पेंटिंग लटकी हुई है. That's my last duchess painted on the wall. यहाँ last means she is no more now. अब वो भूतकाल का विषय बन चुकी है. Last duchess. That's my last duchess painted on the wall. जो दीवार पर जो तस्वीर टंगी हुई है, बनी हुई है, वो मेरी पिछली राजकुमारी की फोटो है, तस्वीर है, चलचित्र है. Looking as if, वैसे तो दिखने में वो फोटो है, दिखी हुई वो सब फोटो है. Looking as if she were alive, लेकिन फोटो देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो फोटो नहीं बल्कि हकीकत में वो जीवित हो. ऐसी जो है फोटो बनाई गई है कि कलाकार ने उस फोटो के अंदर जान फूंक दी है. आई कॉल दैट पीस अ वंडर, और मैं तो इस तस्वीर को एक वंडर कहूंगा, एक आश्चर्य कहूंगा, एक चमत्कार ही कहूंगा. बिकॉज नो वन कैन पेंट सच ए ब्यूटिफुल पेंटिंग एज हैज बीन पेंटेड दिस पोर्ट्रेट. नाउ अब Fra Pandolf's hands. Here the name Fra Pandolf. Fra Pandolf is a monk. Monk जो मठ में रहते हैं साधु तपस्वी की तरह. Hands worked busily a day. और उसकी जो राजकुमारी है, उसकी वाइफ की जो फोटो है, जो चित्र है, वो बनाने के लिए उसने हर किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया.
क्या कोई बाजार में बैठे किसी व्यक्ति को बुला दिया, उसने प्रसिद्ध मंक को बुलाया, एक तपस्वी को बुलाया, ताकि उसकी राजकुमारी के चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सके। इसीलिए वो फ्रा पेंडोल्फ को अंडरलाइन कर रहा है, उस पर प्रेशराइज कर रहा है। वर्क बिजीली डे, और तस्वीर बनाने में फ्रा पेंडोल्फ ने कितने दिन का समय लिया? ओनली 1 डे, एक दिन में वो चित्र बना लिया, और ऐसा चित्र बनाया मानो कि वो साक्षात उसकी जो वाइफ है जीवित इस फोटो में दिख रही हो। एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखो अब वहां देखो उस दीवार के ऊपर मेरी पिछली राजकुमारी की तस्वीर टंगी हुई है, और वो फोटो फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई थी। फ्रा पेंडोल्फ एक मंक था। तो ये सारी बातें ड्यूक टेल्स द मैसेंजर हु केम विद द मैरिज प्रपोजल फॉर हिज मास्टर्स डॉटर। विल यू प्लीज यू शिट। इतनी बात कहने के बाद हम क्या करते, घर पे कोई मेहमान आते हैं तो फर्स्ट वी इनवाइट देम टू सिट डाउन, पहले हम उसको बैठाते हैं। एंड देन आफ्टर वी बिगिन अनदर कन्वर्सेशन, दूसरी बातचीत बाद में शुरू करते हैं। बट द ड्यूक फर्स्ट टेल्स हिम अबाउट हिज लेट वाइफ डचेस। सो दिस इज वेरी सडन अलार्मिंग बिगिनिंग, इसको एक अचानक शुरुआत कहते हैं कविता की। सो दैट द ऑडियंस इज सरप्राइज्ड एंड टाइड डाउन टू देयर सीट्स, वो अपनी सीट से बंधी हुई रह जाती है। इस तरह की बिगिनिंग। इतनी बात बताने के बाद वो उसको नीचे बैठने के लिए, मैसेंजर को नीचे बैठने के लिए कहता है। एंड लुक एट हर, आप नीचे बैठो और उस तस्वीर की तरफ देखो। मैसेंजर नेवर आस्क्ड हिम अबाउट द पोर्ट्रेट, बट द ड्यूक हिमसेल्फ टेल्स हिम। व्हाई ही टेल्स हिम? देयर इज ए मिस्ट्री बिहाइंड इट, दैट ही वांट्स, वो चाहता है कि जो भी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आए वो उनको पहले ही बता दे कि उनकी वाइफ के अंदर किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो पहले ही उसकी होने वाली वाइफ को सूचित कर दे, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपने व्यवहार को सेट कर ले। लुक एट हर, लुक एट दिस पिक्चर, आई सेड, मैंने कहा, आई मीन्स ड्यूक, क्योंकि इन दिस पोएम ओनली ड्यूक विल स्पीक, एज आई हैव सेड दैट देयर इज ओनली वन लिसनर एंड ही इज द ड्यूक, एंड दे स्पीकर बट देयर इज अनदर लिसनर, बट ही ओनली विल listen to him silently without speaking even a word. Will please you sit and look at her, I said, Fra Pandolf by design. ये जो डिजाइन है फोटो की फ्रा पेंडोल्फ में बनाई है। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे अजनबी लोग इस फोटो के राज को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मोनालिसा की मुस्कान किसी ने नहीं समझ पाई, उसी तरह मेरी जो लास्ट डचेज है, राजकुमारी है, इसकी मुस्कान, जो चेहरे पर मुस्कान है, फोटो का जो रहस्य है, वो तुम्हारे जैसे अजनबी लोग, साधारण लोग इसका पता नहीं लगा पाएंगे, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। I said, Fra Pandolf by design, for never read strangers like you, that pictured countenance, countenance face, चेहरा, जो मेरी लास्ट डचेज के पिक्चर के अंदर जो चेहरा है, उस चेहरे के अंदर के जो भाव है, वो तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर लोग, अजनबी लोग पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? द डेप्थ एंड पैशन, डेप्थ गहराई, उसके जो चेहरे के अंदर जो गहराई है, एंड पैशन जो एकदम लगन है, जो लगाव, एकदम इमोशंस है, भाव है, ऑफ इट्स अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता फुल ऑफ डिजायर, इच्छाओं से, आशाओं से भरा हुआ, एंड ग्लांस, नजर। मेरी जो लास्ट डचेज है, उसके चेहरे की जो आंखों के अंदर जो चमक है, उसके जो आंखों के अंदर जो गहराई है, वो तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, लेकिन जब किसी व्यक्ति को उस आंखों का रहस्य पता करना होता है तो वो मेरी तरफ मुड़ता है। किसकी तरफ? ड्यूक की तरफ। बट टू माई सेल्फ, क्योंकि ड्यूक ही जानता है कि उसकी चेहरे की मुस्कान का, उसकी आंखों की चमक का क्या रहस्य है। वॉट इज मिस्ट्री बिहाइंड द ग्लांस ऑफ द लास्ट डचेज पिक्चर्ड हंग ऑन द वॉल, सिंस नन पुट्स बाय, पुट्स बाय कोई पर्दा होता है, ऐसे साइड में करते हैं, लगा हुआ पर्दे को साइड में करना, वो पुट्स बाय होता है। द कर्टन, कर्टन पर्दा,
क्योंकि फोटो के आगे, जैसे मान लो पीछे छोटी सी जगह है, उसके आगे पर्दा लगा हुआ और पीछे फोटो है, तो वो पर्दा भी हटाता नहीं, पर्दा हटाने का अधिकार भी केवल ड्यूक को है, तो हर कोई झांक भी नहीं सकता। जब किसी व्यक्ति को उस फोटो के बारे में जानने की इच्छा होती है, या यूं कहिए ड्यूक अपने आप ही उसको ले जाता है ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछे और उसका रहस्य बताने के लिए वो खुद ही आगे चलकर पहल करता है। But to myself the turn, since none puts by the curtain, I have drawn for you. But I, जो मैंने ये पर्दा लगाया है फोटो के आगे, वो और कोई नहीं हटा सकता except me, मेरे सिवा। And seemed, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, seemed, प्रतीत होना, as they would ask me, अजनबी लोग मुझसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? If they durst, या डस्ट का मतलब डेयर। वैसे ज्यादातर अजनबी लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि मेरी राजकुमारी की फोटो के बारे में मुझे कुछ पूछे, लेकिन अगर किसी की हिम्मत हो जाए तो वो खुद अपने आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो पहले मेरी तरफ देखेंगे और फिर मुझसे इस फोटो का रहस्य पूछेंगे। इफ दे डस्ट, हाउ सच अ ग्लांस कैम देयर, वो मुझसे पूछते हैं इस जो फोटो के अंदर जो ग्लांस है, जो नजर में जो चमक है चेहरे पर, वो कैसे आई? उसका राज बताओ, उस मुस्कान का राज बताओ जो आपकी राजकुमारी के चेहरे पर झलक रही है। क्योंकि देयर मे बी 100 of reasons behind their smile. Who can say what is the exact reason? So not the first. तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने इतनी जिज्ञासा से इस फोटो को देखा है और मेरी तरफ मुड़कर इसके रहस्य को पता करने की कोशिश की है। आर यू टू टर्न एंड आस्क, ये पूछने वाले तुम पहले व्यक्ति नहीं हो। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस उपस्थिति, हस्बैंड पति, वो उसको कहता, सर जो मेरी लास्ट डचेस के चेहरे के ऊपर जो चमक है, जो रोशनी है, वो उसके हस्बैंड की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके सामने उसका हस्बैंड बैठा हो और उसके हस्बैंड को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई हो, ऐसा नहीं है। कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जो उसके चेहरे पर आनंद का जो स्पॉट है, आनंद की जो छवि है, वो उसके हस्बैंड के कारण नहीं है, वो चेहरे की मुस्कान। इनटू द डचेस चीक, जो डचेस के गालों में जो आनंद भरा हुआ है, जो आनंद प्रदर्शित हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। परहैप्स, शायद, मे बी, फ्रा पेंडोल चांस टू से, हो सकता है फ्रा पेंडोल जिसने उसकी पिक्चर बनाई हो, उसने कहा हो, क्या कहा हो? हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। मेंटल कवर होता है, बड़ा सा लबादा क्लॉक होता है, कोट स्लीवलेस, जिसकी स्लीव नहीं होती है, पूरा पहना जाता है और वो यहां तक लंबा होता है। तो फ्रा पेंडोल्फ ने उसकी राजकुमारी से कहा होगा कि उसका शरीर कपड़ों से पूरा ढका हुआ है, इस कारण वो पिक्चर के अंदर, तस्वीर में उसकी पूरी सुंदरता का चित्रण नहीं कर पाएगा। सो शी माइट बी हैप्पी एट लिसनिंग टू सच कमेंट्स, ऐसे कमेंट सुनकर वो खुश हो गई होगी। ये भी कारण है कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, कुछ भी हो सकता है। मेंटल लैप्स, मेंटल क्लॉक होता है जो बड़ा लबादा होता है, लैप्स। और माई लेडीज रिस्ट, रिस्ट कलाई, कपड़ा कलाई तक था, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता दिख नहीं रही थी, इसीलिए फ्रा पेंडोल वाज नॉट एबल टू पोर्ट्रे हिज एग्जैक्ट ब्यूटी। And listening to such beautiful comments, she became very happy and called that spot of joy into her cheek. Our paint must never reproduce, वापस से पैदा करना, मतलब जो चीज हम देखते हैं उसी का कोई वापस चित्र बनाना। The faint मूर्छित, half flush that dies along her throat. His last duchess was so beautiful, so fair that her skin was red, and even from inside her throat,
was visible means her beauty was so transparent. She was so beautiful that he was not able to reproduce what? He was not able to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff, stuff का मतलब ऐसी बातें, ऐसे कमेंट, ऐसी टिप्पणियां, was courtesy, उसके लिए सब सम्मान की बात थी। ऐसी टिप्पणियां सुनकर उसको सम्मान, अपने प्रति खुशी प्रतीत हो रही थी डचेस को। शी थॉट, उसने सोचा। लास्ट डचेस ने जब ये सारे कमेंट सुने तो वो खुश हो गई, इसीलिए हो सकता है उसके गालों में ये स्माइल है। एंड बिकॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप, एंड that cause enough for calling up that spot of joy, यही वो कारण था कि जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आई होगी। जरूरी नहीं वो है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि ये मुस्कान केवल उसके हस्बैंड की वजह से नहीं है। For calling up that spot of joy she had a heart. How soon I say, how soon, what should I say to you, my guest? A heart, how shall I say, too soon made glad. My wife was in habit of being happy at each and everything, in no time, too easily impressed. She was impressed very easily. She liked whatever and she liked whatever she looked on. जिस किसी चीज को देखा उसने उस चीज को पसंद किया। And her looks went everywhere, और उसकी नजरें चारों तरफ जाती थी। इसका मतलब उसकी वाइफ हर चीज को पसंद करती थी। सर इट वॉज ऑल वन, बस मेन समस्या यहां थी, इसको क्यों तकलीफ है। इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सारी चीजें एक ही समान है। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, माई फेवर, मैंने जो उसके ऊपर एहसान किया है, जो उसके सीने पर है, इसका मतलब उसके द्वारा दिए गए महंगे अमूल्य गहने, बड़ा सा जो हार उसके गले में पहना हुआ है, तो वो मैसेंजर को कह रहा है कि मेरे राज खानदान की वाइफ होने के बावजूद वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो या उसका हस्बैंड, तो सबको बराबर वैल्यू दे रही है। मुझे ज्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए बिकॉज आई एम हर हस्बैंड एंड आई फेवर्ड हिम हर, which is seen over her breast. The dropping of the daylight in the west. वो हर एक छोटी छोटी चीज से खुश होती थी, चाहे वो ड्रॉपिंग का मतलब अस्त होना, और डे लाइट इन द वेस्ट, चाहे पश्चिम में अस्त होने वाला सूरज हो, उसको देखकर भी खुश होती थी। द बाऊ छोटी सी ब्रांच होती है, शाखा होती है जो हम पेड़ से डाली तोड़ देते हैं, जैसे नीम वगैरह की डाली तोड़ते हैं छोटी। ऑफ चेरीज सम ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का मतलब होता है इंटरफियर करने वाले व्यक्ति, जो दूसरों की बातों में टांग अड़ाने वाले, परेशान करने वाले व्यक्ति। तो पश्चिम में अस्त होने वाला सूरज हो, या फिर कुछ बदमाश लोगों द्वारा लाई गई चेरी हो, चेरी होती है जो खाने के लिए काम आती है, और जब कोई व्यक्ति उसको चेरी गिफ्ट करता है, या फिर पश्चिम के अंदर जब सूर्य अस्त होता है, ब्रॉक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, जो ऑफिस फूल, और इन परेशान करने वाले लोगों को क्या कवि ने कहा है, फूल, मूर्ख की संज्ञा दी है। ऐसे मूर्ख लोग जो उसके लिए चेरी लेकर आते हैं, उन छोटे से चेरी के गिफ्ट को देखकर भी वो खुश हो जाती है। ऐसी वाइफ के लिए क्या कहना। हर वाइट म्यूल, म्यूल खच्चर होता है, मिक्स कंपोजिशन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। म्यूल शी रॉड विद राउंड द टेरेस, और जब वो टेरेस पर, छत पर सफेद खच्चर के ऊपर राइड करती हैं, सवारी करती हैं, उस सवारी से भी वो खुश हो जाती है। तो कवि को ये ड्यूक को कवि नहीं कहेंगे, यहाँ ड्यूक है मैन स्पीकर, एंड द नेम ऑफ ड्यूक इज द अल्फोंसो, एंड ही इज द ड्यूक ऑफ फरारा। सो उसकी मेन तकलीफ ये है कि वाई हिज वाइफ is not happy with him only, why she is blushed, become very happy even
when she receives the smallest gift, whether it is the dropping of the sunlight in the west or some gift of cherries brought by some officious fool broke in the orchard, or the mule over which she ride round the terrace, all and each, सभी चीजें, प्रत्येक चीज would draw यानी खींचना, आकर्षित करना, from alike एक समान, the approving speech और blush at least, किसी व्यक्ति को देखती तो उसके लिए वो हमेशा धन्यवाद ही प्रकट करती थी, अगर धन्यवाद नहीं दे सकती तो कम से कम मुस्कुरा जरूर देती थी। और राजकुमारी की ये आदत, हर एक चीज को बराबर वैल्यू देना, हर एक चीज की तरफ मुस्कुराना, हर एक चीज का धन्यवाद ज्ञापित करना, ये राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। He was very possessive, he was very jealous because he wanted his whole power, his whole control over his wife, which he could not succeed in his life. और ब्लस एकदम शर्माते हुए हंसते हैं, उसको कहते हैं एट लीस्ट, कम से कम, सी थैंक्ड मैन, गुड, वो हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देती थी, गुड, अच्छी बात है। बट थैंक्ड somehow किसी तरह, आई नो नॉट हाउ, बट आई डोंट नो हाउ शी थैंक्ड ईच एंड एवरी पर्सन as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift। लेकिन वो दूसरे लोगों को भी ऐसे धन्यवाद देती थी, ऐसे थैंक्स कहती थी, मानो मेरा जो 900 years old, 900 साल जो पुराना जो मेरा राजघराना है, जो 900 years old मेरा जो राज परिवार है, राजमहल है, उसकी वैल्यू इतनी है कि मेरे महल की, मेरे सैकड़ों साल पुराने राजघराने को भी इतना ही वो वैल्यू देती है जितना एक नॉर्मल चीज को वैल्यू देती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सच थिंग्स। वो चाहता था कि उसकी वाइफ इन दोनों के बीच में एक दीवार बनाकर रखे, दूसरे लोगों को अलग तरह से वैल्यू दे और उसके नाम को, उसके राजघराने को अलग वैल्यू दे। बट शी वाज calm and sweet and gave value to each and everyone, whether it is the biggest or the smallest things alike. She thanked each and everything in the same way as she thanked her husband. She thanked even to the smallest person regardless of its value. Who would stoop? Stoop यानी झुकना। यहाँ झुकने का मतलब यहाँ बॉडीली नहीं झुकना, अंदर से कहता ना, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, अपनी बातों से नहीं हारना, टू ब्लेम। लेकिन मैंने उसको कभी दोष नहीं दिया। इतनी छोटी हरकत कौन करेगा? हाँ, स्टूप को हम कहेंगे छोटी हरकत करना, कि उसको ब्लेम करके उसके ऊपर लांछन लगाना, ये मेरी आदत में शुमार नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस प्रकार की ट्रिफलिंग तुच्छ कार्य, निम्न कार्य, ऐसा निम्न कार्य मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कौन सा? अपनी वाइफ के ऊपर कलंक लगाने का, उंगली उठाने का काम मैं नहीं करूंगा। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक यू विल। अगर मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह यानी जो उसके सामने मैसेंजर बैठा उसको कह रहा है कि अगर मेरे अंदर भी, इफ आई हैड सच स्किल्स एज इज फाउंड इन यू, जैसी तुम्हारे अंदर बोलने की कला है, अगर मेरे पास भी ऐसी कला होती तो मैं अपनी वाइफ को समझा पाता। देखिए यहां पर एक आयरनी है। आयरनी मीन्स व्हाट वी से एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इफ आई से दैट श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट आफ्टर कमिंग इन द कमिंग टाइम श्याम प्रूव टू माई एनिमी, आने वाले टाइम में वही मेरा दुश्मन का काम करे। मीन्स व्हाट आई से एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ड्यूक कह रहा है कि मेरे अंदर बोलने की स्किल नहीं है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर बोलने की कला है, तो इसको हम आयरनी कहेंगे। टू मेक यू विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से, अगर मेरे अंदर कुछ बोलने की कला होती, कुछ समझाने की कला होती, तो मैं अपनी वाइफ को समझाता। क्या समझाता? जस्ट दिस और डेट इन यू डिस्कस्ड मी, तुम्हारे अंदर ये चीजें, ऐसी चीजें, वैसी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तुम ये चीजें ऐसा करना, सबके सामने मुस्कुराना बंद कर दो, सबको धन्यवाद करना बंद कर दो। ये चीज मैं कह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। हियर यू मिस, यहां तुमने गलती कर दी, मैं ये उसको समझा सकता था, बट आई नेवर डिड सो। और देर एक्सीड द मार्क, और यहां तुम अपनी मर्यादा लांघ रही हो, मैं उसको ये बता सकता था, एंड ये मैं बता सकता था, बट मैंने ऐसा किया नहीं। सी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, हो सकता है वो मेरी बात को सुन ले, वो मेरी बात को समझ लेती, लेकिन मैं इतनी ओछी हरकत करने वाला नहीं था। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, हो सकता है वो तुम्हारी मेरी बात को समझ भी पाती, हो सकता है वो मेरे से वाद विवाद कर लेती कि नहीं, मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल सही था, मेरी तरफ से कोई गलत बात नहीं हुई, ऐसा भी हो सकता था। फॉर सूथ इन ट्रूथ एंड मेड एक्सक्यूज, हो सकता है वो एक्सक्यूज बना लेती, वो बहाने कर लेती कि नहीं नहीं, मैंने तो किसी और वजह से मुस्कुराई, मेरा कोई और बातचीत थी, तो ये भी मेरे लिए अच्छी बात नहीं होती अगर ऐसी बात होती तो। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है ना, और उसके मन को ठेस पहुंचती है, तो वो अपने मन में ठेस पहुंची हुई बात को किसी के सामने शेयर करना भी अपनी मर्यादा के बराबर नहीं समझता, और ऐसे व्यक्तियों में ही ये ड्यूक शामिल है। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, ऐसा करना भी, उस पर लांछन लगाना तो दूर की बात, उसको समझाना भी मेरे लिए एक छोटी बात होती, एक ओछी बात होती। मेरे जैसा राजकुमार उसको समझाए, ये कौन सी बात हुई। इसीलिए मैंने छोटी मोटी बातें करना बंद कर दिया, छोटी मोटी हरकतें करना बंद कर दिया। एंड आई चूज, और मैंने क्या चूज किया, मैंने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? नेवर टू स्टूप, कभी झुकना नहीं है, कभी छोटी हरकतें नहीं करनी है। ओ सर, सी स्माइल, ओ सर, ये लिसनर जो मैसेंजर है, सी स्माइल, वो मुस्कुराती थी। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेन एवर आई पास्ट हर, मैं जब भी मेरी वाइफ के पास से गुजरता, वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, मुझे अच्छा लगता था। बट हु पास्ट विदाउट मस्ट द सेम स्माइल, लेकिन मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जो उसके सामने से गुजरा हो और उसकी तरफ वो देखकर मुस्कुराई नहीं हो। और यही चीज उसके मन में ठेस पहुंचा रही थी, घाव पहुंचा रही थी साइकोलॉजिकली। दिस ग्रू, ये चीज बढ़ती गई, उसकी मुस्कान बढ़ती गई। आई गेव कमांड्स, और एक दिन मैंने ऑर्डर दे दिए। आई गेव कमांड्स, विच काइंड ऑफ कमांड्स? देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और मेरे कमांड देते ही सारी मुस्कान, सारी स्माइल थम सी गई, रुक गई। या स्माइल थमने का मतलब है कि गॉट हिज वाइफ मर्डर्ड, उसने अपनी वाइफ का मर्डर करवा दिया। वो उसको समझाने जैसी छोटी हरकतें उसने कभी नहीं की, वो इतनी ओछी हरकत करने वाला नहीं था, और आखिर में उसका मर्डर ही करवा दिया। इसीलिए इसका मतलब है देन 1 2 3 4 5, these are 5 words। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, उसके ऑर्डर देते ही सारी स्माइल बंद हो गई। कहने का तात्पर्य उसकी पत्नी का उसने मर्डर करवा दिया। क्रिटिक इन 5 शब्दों को, इसको 5 वर्ड्स ट्रेजेडी कहते हैं। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर कॉल्ड 5 वर्ड्स ट्रेजेडी, बिकॉज दीज आर 5 वर्ड्स, देयर आर 5 वर्ड्स। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। देयर शी स्टैंड्स, अब वो अपनी बात को खत्म करता। देखिए वो तस्वीर टंगी हुई है, अब वो जीवित नहीं है, उसने अपनी पूरी स्टोरी बता दी ताकि उसकी होने वाली वाइफ के कानों तक की खबर पहुंच जाए कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वांट्स इन हिज वुड बी वाइफ। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, बिल्कुल जीवित दिख रही। देखिए, विल प्लीज यू राइज, क्या अब आप खड़े होंगे? पहले उसने बैठने के लिए कहा था बात शुरू करने के पहले, और अब जब बात खत्म हो रही है तो वो उसको खड़े होने के लिए कह रहा है। वी विल मीट द कंपनी, आओ अब चलते हैं। नीचे कंपनी बैठी, कंपनी यानी शादी का प्रस्ताव लेकर कुछ लोग आए हुए हैं। देयर आर सम पीपल विथ प्रपोजल ऑफ हिज मैरिज। बिलो देन, नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहा है, और वो मैसेंजर के साथ नीचे उनसे मिलने जाने वाला है। आई रिपीट,
द काउंट, अब वो मेन मुद्दे पर आता है। देखिए काउंट होता है, जैसे अपने प्रिंस वगैरह होते हैं, हम इसको कह सकते हैं नोबल मैन। नोबल मैन होते हैं धनवान व्यक्ति जिसकी पद प्रतिष्ठा बड़ी होती है, वो नोबल मैन कहलाते हैं, उसको काउंट कहते हैं। और ये जो मैसेंजर जिस लड़की का प्रस्ताव लेकर आया, जिस लड़की का शादी का प्रस्ताव ड्यूक के लिए लेकर आया है, वो इस काउंट की बेटी है और उसकी तरफ से वो मैसेंजर आया है। द काउंट, आई रिपीट, तो ड्यूक उस मैसेंजर को क्या कहता है कि मैं वापस रिपीट करता हूं, द काउंट, जो तुम्हारा मालिक है, योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस दानवीरता होती है, उदारता होती है, जो तुम्हारे मालिक की जो दानवीरता है, उदारता है, वो सब जगह फैली हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज एम्पल वारंट, ये वारंट है, दैट नो जस्ट प्रिटेंस, प्रिटेंस बहाना, ऑफ माइन फॉर डाउरी, डाउरी दहेज, विल बी डिसअलाउड। वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारे जो मालिक की जो उदारता चारों तरफ फैली हुई है, वो इस बात का परिचायक है कि किसी भी तरह का दहेज जो मैं मांगूंगा उसकी मनाही नहीं होगी। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई वाउड, एकदम स्पष्ट करना, वैसे मैं स्पष्ट कर देता हूं कि तुम्हारी मालिक की जो बेटी है वही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मालिक की उदारता को देखते हुए लगता है कि वो मुझे दहेज दिए बिना नहीं रहेगा। एक्चुअली वो चाहता है कि उसको दहेज मिले। जैसा मैंने आपको बता दिया, ही इज वेरी क्लेवर पर्सन, वो हर एक चीज को कहने की कला जानता है, और इसीलिए वो कहता है कि वैसे तो मेरा मकसद तुम्हारे मालिक की बेटी से केवल शादी करना है, लेकिन तुम्हारी मालिक की उदारता को देखकर लगता है कि ही विल नेवर रिफ्यूज टू गिव मी डाउरी। एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, द डॉटर ऑफ योर काउंट इज माई ओनली ऑब्जेक्ट, बट योर मास्टर विल श्योरली प्रोवाइड मी विद डाउरी। नहीं, नो वी विल गो टुगेदर डाउन। जब वो नीचे जाने वाला होता है तो मैसेंजर बैठा रहता है, या हम कह सकते पीछे खड़ा रहता है, क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके साथ साथ नहीं चलते हैं। तो ड्यूक मुड़कर उसको कहता है तुम रुको मत, मेरे पीछे मत आओ, वी विल गो डाउन टुगेदर, हम नीचे एक साथ चलेंगे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कन्वे सम आइडिया टू हिम, वो उसको कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? सर, अब वो एक और तस्वीर बताता है उसको, सर नोटिस नेपच्यून, एंड दैट एक्चुअली दिस पिक्चर इज ऑफ नेपच्यून। नेपच्यून इज द गॉड ऑफ सी, वरुण देवता जो होता है, सी गॉड, दो टेमिंग अ सी हॉर्स, और समुद्र के देवता की एक तस्वीर है जिसमें वो समुद्र के घोड़े को टेम कर रहे हैं, उसकी हाथ में उसकी जो है रस्सी पकड़ी हुई है, घोड़े को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर है जिसमें सी गॉड इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स एंड कंट्रोलिंग दिस हॉर्स। Through this picture he wanted to convey his idea to him that as the god of sea is controlling this horse, I also am very well clever and I very well know how to control a wife. I will also control my wife, means the daughter of your master, in the same way as the sea god controls this sea horse. Though a rarity, ये जो तस्वीर है वो रेयरिटी है, दुर्लभ है, हर कहीं मिलती नहीं है। तो मेरे जैसा द कैरेक्टर विच इज इन मी इज ऑल्सो रेयर थिंग, एंड आई नो वेरी वेल हाउ टू कंट्रोल माई वाइफ एज द नेपच्यून कंट्रोल्स द सी हॉर्स। विच क्लॉस ऑफ इंसबर्ग, और ये नेपच्यून वाली तस्वीर किसने बनाई? क्लाउस ऑफ इंसबर्ग। क्लाउस पेंटर का नाम है, कलाकार का नाम है, और इंसबर्ग जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, और कास्ट यानी बनाना, ब्रांज तांबा होता है, फॉर मी। और ये जो पेंटिंग है वो क्लाउस ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए बनाई थी, इन विच Neptune is shown riding over the sea horse in the controlling way. So students, in this poem I have already told you this is dramatic monologue,
including single speaker speaking to silent listener, composed in 1842, and this is historically, psychologically very known poems and one of the best poems of Robert Browning. He was Victorian poet. So I explained and tried to inculcate you all the ideas and the ins and outs of the dramatic monologue for your better understanding, and if you still find any problems, you may contact me. Thank you very much.